پوری کائنات میں جھگڑا دنگا فساد روز کا معمول تھا۔ غرور و تکبر میں ڈوبے ہوئے مختلف قبائل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اس روز کی خون ریزی سے زمین لہو لہان ہو چکی تھی۔ خوفناک آوازوں سے پہاڑ و صحرا لرز اٹھے تھے۔ خود اہل آسمان بھی مضطرب اور فکر مند تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت اس فساد کو ختم کرنے کے لیے زمین پر بھیجی جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر اتری۔ انہوں نے شر پسند عناصر کا خاتمہ کر کے باقی مخلوق کو دور دراز جزیروں کے جانب دھکیل دیا، اور یوں فرشتوں کا کام ختم ہو چکا۔ فرشتوں نے آسمان پر واپس جانے کے لیے ابھی اڑان بھری ہی تھی کہ ان میں سے چند کی نظر نیچے زمین پر لاشوں کے ڈھیر کے درمیان ایک معصوم 9 عمر لڑکے پر پڑی، جو زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کے والدین سمیت پورا خاندان اس جنگ میں ختم ہو چکا تھا۔ فرشتوں کو اس بچے کی کم عمری اور معصومیت پر بڑا ترس آیا۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور اس بچے کو آسمانوں پر لے آئے، جہاں یہ فرشتوں کی زیر نگرانی تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرنے لگا۔ اس بچے کا نام عزازیل تھا۔ زمین و آسمان کے وجود میں آنے کے بعد رب العالمین نے 2 مخلوقات پیدا فرمائی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق کو نور سے پیدا فرما کر آسمانوں پر تعینات فرمایا، جو فرشتے کہلاتے ہیں اور نہایت ہی نیک سیرت، معصوم اور فرما بردار ہیں۔ ہر وقت و ہر لمحہ رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ ہی سوتے ہیں۔ جبکہ دوسری مخلوق جو ناری کہلاتی ہے، اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کو زمین پر مقرر کیا گیا، وہ جنات کہلاتی ہے۔ ان کی اکثریت میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں مونس و مذکر بھی ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا دنگا فساد ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ وہ شادیاں کرتے ہیں اور ان کی نسل بھی خوب بڑھتی ہے۔ عزازیل اپنا تمام تر وقت تسبیح اور تحمید اور عبادت الہی میں گزارتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ہر علم کے سیکھنے اور جاننے کا بڑا شوق تھا۔ چنانچہ بہت جلد اس نے فرشتوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا اور آسمانوں پر فرشتوں کا سردار مقرر فرما دیا گیا۔ اہل آسمان اسے معلم ملکوت کے نام سے یاد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 4 پروں سے نوازا تھا، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے درجات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ فرشتوں میں یہ احساس پیدا ہو چلا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑا یا منفرد کام لینے والا ہے۔ اس بات کا کچھ اندازہ عزازیل کو بھی ہو چکا تھا۔ شاید یہی وہ احساسات تھے کہ جب اس کے دل کے کسی گوشے میں احساس برتری کے بیج میں سے تکبر کی ایک ننھی سی کونپل پھوٹی، جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی رہی، اور وہ فرشتوں ملائکوں میں مغرور مشہور ہو گیا۔ لیکن اس سے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں تھی کہ اہل آسمان اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ تو اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کرنے کی جستجو میں مصروف رہتا تھا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام اور حکم حکمت سے خالی نہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عزازیل اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتوں میں اپنا مقام بنا چکا تھا، اور پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب رب ذوالجلال نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ملائک نے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سنا تو انہیں کچھ حیرانی سی ہوئی، اس لیے کہ زمین کی مخلوق کا دنگا فساد ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے 2000 سال پہلے زمین پر جنات کو پیدا فرمایا تھا، جنہوں نے پہلے دن سے زمین پر قتل و غارت گری مچا رکھی تھی۔ چنانچہ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے، آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات تمہاری تسبیح اور تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک، لیکن جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
चुनाचा फरिश्तों ने मशीयत इलाही के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं मिट्टी का एक इंसान बनाने लगा हूं, फिर जब बना चुकूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया जो तमाम रूए जमीन से ली गई थी। लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में भी जमीन की तरह गोरे, स्याह, सुर्ख, दरमियानी, नर्म और सख्त तबीयत वाले अच्छे और बुरे हैं। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि अल्लाह जुल जलाल ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और ये बगैर रूह के 40 साल तक उसी तरह रहा। फरिश्ते जब उसके पास से गुजरते तो उसे देखकर घबरा जाते थे और सबसे ज्यादा घबराने वाला अज़ाज़ील था। ये उसके पास से गुजरता तो उसे मारता, जिसकी वजह से हजरत आदम के जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खनखनाती मिट्टी की ठीकरी से निकलती है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि उसने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया। फिर इब्लीस ने फरिश्तों से कहा कि तुम इससे क्यों डरते हो? ये तो अंदर से खाली है, अगर मैं इस पर मुसल्लत हो गया तो मैं ही इसे हलाक कर डालूंगा। और जब अल्लाह ने फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया तो वो सब सजदे में गिर गए, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर और तकब्बुर में आकर काफिर बन गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका? उसने कहा मैं उससे अफजल हूं, मुझे तूने आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से बनाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू बेहिश्त से निकल जा, तुझे शाया नहीं कि यहाँ गुरूर करे, बस निकल जा, तू मरदूद हो गया। उसने कहा मुझे रोज महशर तक की मोहलत दे दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जा, तुझे मोहलत दी जाती है। फिर शैतान ने कहा कि मुझे तो तूने काबिल लानत बनाया ही है, मगर मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर चलने वालों को बहकाऊंगा, उनके आगे से और पीछे से, दाएं से और बाएं से, गरज हर तरफ से आऊंगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ से जलीलो ख्वार होकर निकल जा। उनमें से जो शख्स तेरा कहना मानेगा मैं तुझ समेत उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। बारगाह खुदावंदी से धुतकारे जाने के बाद शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। उसके गुरूर और तकब्बुर की बिना पर उसकी हजारों साल की तस्बीह और तकदीस और इबादत और इताअत उसके मुंह पर मारकर उसे अर्श से फर्श पर पटक दिया गया। शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मरदूद हुआ था। चुनाचा उसके दिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए कीना, नफरत और दुश्मनी कूट कूट कर भरी हुई थी। उधर बारी ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई दूर करने के लिए हजरत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और जो चाहो खाओ पियो, मगर उस दरख्त का रुख न करना, वरना जालिमों में शुमार हो गए। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये भी बता दिया था कि ए आदम, बेशक ये इब्लीस तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, तो तुम्हें जन्नत से न निकलवा दे कि फिर तू तकलीफ में पड़ जाए। शैतान को इस बात का इल्म हो चुका था कि अल्लाह ताला ने एक मखसूस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया है, तो उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई और वो दिन रात उसी कोशिश में लग गया कि किसी न किसी तरह ये दोनों उस दरख्त का फल खा लें ताकि अल्लाह ताला की नाफरमानी का इर्तिकाब कर ले। भला आखिर एक दिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो गया। मोरखीन लिखते हैं कि पहले उसने अम्मा हवा को बहकाया और अम्मा हवा के कहने पर दोनों ने उस दरख्त के फल को अभी चखा ही था कि उन पर उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गई और वो अपने बदन पर बेहिश्त के पत्ते चिपकाने लगे। इब्लीस अपनी उस पहली कामयाबी पर बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन अब वो इब्लीस से शैतान बन चुका था, जिसकी माना सरकश, बागी, फितना अंगेज और बहकाने वाले के हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान की सरकशी का ये वाकया कुरान करीम की 7 सूरतों में बयान किया गया है, जिनमें सूरह बकरा, सूरह अहराफ, सूरह हजर, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह ताहा और सूरह रहमान, जबकि कुरान मजीद में 88 बार शैतान और 11 दफा इब्लीस के नाम से उसका जिक्र है।
اللہ ताला ने हजरत हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माफ फरमाकर दुनिया की जानिब रवाना कर दिया। शैतान को पहले ही जन्नत से निकाला जा चुका था, चुनाचा अब जमीन पर खैर और शर, हिदायत और जलालत, नेकी और बदी के दरमियान एक ना खत्म होने वाली जंग का आगाज होने जा रहा था। लेकिन अल्लाह ताला ने शैतान को पहले ही आगाह फरमा दिया था कि जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तेरा कुछ जोर नहीं चलेगा, क्योंकि शैतान इंसान का खुला और अजली दुश्मन है। लिहाजा वो अपने पैरोकारों के साथ दिन रात इंसान की दुनिया और आखिरत तबाह और बर्बाद करने के दर पे रहता है। दुनिया में हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गुनाह शैतान की पुष्टपनाही और मदद ही के बिना पर सरंजाम पाता है। दिलों में विस्वसे पैदा करना शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। चुनाचा जुहद मुसलसल के जरिए वो अक्सर अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाता है, लेकिन अहकामात इलाही के मुताबिक नेक लोगों पर शैतान का बस नहीं चलता। शैतान जिद्दी, खुदसर है, लिहाजा मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान खून की तरह इंसान के बदन में दौड़ता रहता है। अजान और तकबीर की आवाज सुनकर शैतान तेजी से बाहर की जानिब भागता है, फिर दौरान नमाज वापस आ जाता है कि इसने कितनी रकातें अदा की हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के दौरान अगर किसी किस्म का शुबा महसूस हो तो बैठे बैठे सहफ के 2 सजदे कर लिया करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स सोकर उठे और वुजू करे तो 3 मर्तबा नाक झाड़े, क्योंकि शैतान रात भर उसकी नाक के नथने में बैठा रहता है, जिससे आदमी पर सुस्ती गालिब आ जाती है। बस नाक झाड़ने से वो सुस्ती दूर हो जाती है। जब शाम हो जाए तो अपने बच्चों को अपने पास रोक लिया करो, क्योंकि शयातीन उस वक्त जमीन पर फैल जाते हैं। अलबत्ता एक घड़ी रात गुजर जाए तो उन्हें छोड़ दो और अल्लाह का नाम लेकर दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि शैतान किसी बंद दरवाजे को नहीं खोल सकता। आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जब गुस्सा आए तो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहां शैतान दाखिल नहीं होता। एक और फरमान है कि जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा, बिला शब्बा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सोच समझ कर काम करो, जल्दबाजी ना करो। काम में जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। सही बुखारी में है कि जब मुर्गे की बांग सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल किया करो, क्योंकि उसने फरिश्ते को देखा है। और जब गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उसने शैतान को देखा है। अल्लाह ताला हम सबको शैतान के शिर से बचने की तौफीक अता फरमाए और कुरान और हदीस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।